The rowing competition is about to start और ये जो rowing competition ये start होगा बहुत खूबसूरत चार चिनारे से ये start होगा और SKICC तक ये competition होने वाला है और जो चार चिनारी अपने टूरिस्ट अपने सयाह के लिए जाना जाता है वो आज होस्ट करने वाला है वाटर स्पोर्ट्स इवेंट और रोविंग का इवेंट आज ये चार चिनारी होस्ट करने वाला वो इंडिया स्पोर्टिंग इवेंट वाटर स्पोर्टिंग इवेंट बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये हमने हमेशा कहा है कश्मीर रियासत जो है वो उसमें टूरिज़्म की बेहद ज़रूरत है और इसके साथ साथ ही अब वाटर टूरिज़्म भी यहाँ है और ये बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यंग एथलीट्स अपना जौहर दिखाने के लिए अपनी स्किल्स दिखाने के लिए क्योंकि वो कॉम्पीट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ 500 से ज़्यादा यहाँ पे जो है एथलीट्स आए हुए हैं और ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है और हमने देखा कि पहला कंपटीशन कितना ज़बरदस्त रहा और ये ब्यूटीफुल डल लेक और बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं ज़बरवन हिल्स के किनारे ये रेस हो रही है और बड़ा ज़बरदस्त और जो डल लेक अपने पिक्चरस्क्यू अपनी फिल्म्स के लिए जाना जाता था नगमे यहाँ पे जो है पिक्चराइज किए जाते थे बैक इन 60s 70s 80s लेकिन नाउ ये वाटर स्पोर्टिंग इवेंट के लिए जाना जाएगा फिलहाल बैक टू द कमेंटेटर्स वसाफ को हम सुन रहे थे कि किस तरीके से इस पहले संस्करण और पहले आयोजन को लेकर उत्साह है और यकीनन जम्मू कश्मीर की धरती पर एक और नया आयाम आज लिखा जा रहा है और उसी के लिए ये आज के शेड्यूल की एक बार बात कर लेते हैं क्या कुछ शेड्यूल रहेगा जहां पर रोइंग के अंदर अब लाइट वेट डबल स्कल के स्पर्धा शुरू होगी और उसके साथ ही मेंस सिंगल स्कल मेंस डबल स्कल और विमेंस 4 के अलावा लाइट वेट विमेंस डबल स्कल मेंस सिंगल स्कल और फिर लाइट वेट विमेंस डबल स्कल के अलावा मेंस पेयर विमेंस 4 और लाइट वेट विमेंस डबल स्कल की स्पर्धाएं होंगी विभिन्न जो डिस्टेंस है जो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का रहेगा और यकीनन लगातार हम आपके साथ इस सारे एक्शन का आपके साथ मौजूद रहेंगे। कमेंट्री बॉक्स में मेरा नाम है विकास पांडे, मेरे साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत विपिन क्लेमेंट का। विपिन, इतने खूबसूरत नजारे के बीच में कमेंट्री करने का लुत्फ उठाने के लिए आप आतुर होंगे यकीनन। जी हाँ बिल्कुल, it's such a privilege to be here. On one side I have Vasaf and on the other side I have Vikas with me and Sandwich. It's a triple trio of V's. All right, the verse sound, which is such a resonating sound in Hindi, and in this beautiful valley surrounded by these beautiful mountains of the Himalayan range, the words will resound over the next 3 days. So 21st, 22nd and 23rd. 3 days of absolute beauty on your screens as we had an opportunity to blend in with the athletes earlier today and we got some amazing conversations going about what they thought about Kashmir, what they thought about the beauty that they are seeing. Many of them, of course, visiting Kashmir for the first time, being at the famed Dal Lake for the first time as well. The Dal Lake on your screens, nestled in the heart of Srinagar, is a breathtaking and a beautiful destination that embodies the essence of nature's true splendor. This majestic lake is surrounded by, of course, the crown jewel of India, as I'd like to call it, the Himalayas, and is a testament to the rich cultural heritage and the natural beauty that India as a country boasts. This, of course, many people might not know, is a man-made lake built in the 17th century by Sultan Hassan Shah. And centuries, many sultans, then of course the British Raj, they all enjoyed visiting Srinagar in Kashmir and enjoying the waters of Dal Lake. Today, of course, scores, hundreds and thousands of tourists from across the country and all over the globe visit Srinagar and enjoy the beauty of this sensational lake. Well, we've started off with the first race for the day. This is the lightweight women's double scull. Don't get too worried. We're not right now in medal consideration. We have 3 states right now participating as part of this race.
The four that were supposed to be part of these races were Manipur, Orissa, Jammu and Kashmir and Meghalaya. विपिन, जम्मू और कश्मीर की टीम जो है इसमें हिस्सा नहीं ले रही है, हमें जो अभी अभी सूचना मिली है, और यकीनन अभी ये तीन जो प्रतियोगी टीमें हैं उन्हीं के बीच में ये पहली हीट की शुरुआत हुई है। लेन नंबर 1 में मणिपुर संतोष यादव और रुकमनी है, तो वहीं ओडिशा के लिए स्वीटी और अनिष्का भारती, और वहीं मेघालय के लिए रीना कुमारी और किरण देवी इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। तो ये विमेंस स्कल की ये डबल स्पर्धा चल रही है, जहां पर दो खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं, और यकीनन विमेंस लाइट वेट डबल स्कल की स्पर्धा के अंदर जो इस हीट से टॉप करेगा उसको अगले राउंड में जगह मिलेगी। याद रखिए, रैपिजेस के जरिए भी आपको दूसरा मौका मिलता है, और यहां पर अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया डायरेक्ट फाइनल्स के लिए, तो आपके पास एक मौका होता है, आप रैपिजेस के जरिए बेहतर परफॉर्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल नजरें रहेंगी कि किस तरीके से ये पहली हीट समाप्त होती है। डल लेक मेजबानी कर रहा है इस पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का। ग्रुप ए में ये हीट नंबर 1 का आगाज हुआ है, जहां पर विमेंस लाइट वेट डबल स्कल्स की स्पर्धा चल रही है। ओडिशा की टीम इस समय आपकी स्क्रीन पर ओडिशा को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्वीटी और अनिष्का भारती, और अब इंतजार और धीरे धीरे वो फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ते हुए ये हीट, और देखना दिलचस्प होगा कि इस पहली हीट से कौन टॉप करता है और कौन आगे बढ़ता है। यहां से ये खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं, डीडी स्पोर्ट्स के जरिए ड्रोन से लिया गया एक खूबसूरत तस्वीर आप तक पहुंच रही है। याद रखिए, साथ ही साथ आप इस प्रसारण का लुत्फ आप प्रसार भारती के YouTube चैनल पर भी उठा सकते हैं। मेघालय आपकी स्क्रीन पर इस समय रीना कुमारी और किरण देवी, और इस समय वो धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन की तरफ, और हमें जो यहां से नजर आ रहा है उसके हिसाब से फिनिशिंग लाइन की तरफ मेघालय सबसे आगे बढ़ रही है, यानी मेघालय टॉप करने की ओर अग्रसर है। लेकिन आखिरी लम्हों में फिनिशिंग लाइन की तरफ जाकर ये किस तरीके से फिनिश करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब रफ्तार पकड़ चुकी है। तीनों लेन में जो प्रतियोगी हैं वो अपना दमखम दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इस समय अब देखिए यहां पर ओडिशा ने इस हीट को लीड किया है, टॉप किया है। ओडिशा की ये आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की टीम संतोष यादव और रुकमनी, जी हाँ, इन्होंने संभवतः बहुत नजदीकी रहा ये मुकाबला। देखना दिलचस्प होगा कि किसने लीड किया है, टॉप किया है इस हीट को। आधिकारिक पुष्टि का हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन एक जबरदस्त हीट की शुरुआत हुई इस रोइंग की स्पर्धा के अंदर, जब हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं लाइट वेट विमेंस डबल स्कल्स की स्पर्धा में। और पहली हीट ग्रुप ए से किस टाइम के साथ और किस स्तर के खेल के साथ लीड किया है, यह आधिकारिक पुष्टि का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन विपिन, पहली हीट का समापन हुआ है, यकीनन एक नजदीकी मुकाबला देखने को मिला।
So we have been waiting for the official confirmation of the score lines into the qualifiers as part of heat number 1. And in that first heat, Manipur taking the kudos, which is the team that was in lane number 1, Santosh Yadav and Rukmani, making their way into the finals of the lightweight double scull. ग्रुप ए से हीट नंबर 1 मेंस डब सिंगल स्कल की अब स्पर्धा चल रही है। याद रखिए इसमें एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास ओलंपिक में खेलने का अनुभव प्राप्त है। अर्जुन लाल जट दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके पास एशियन गेम्स में कमाल का प्रदर्शन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो या फिर एशियन चैंपियनशिप की बात हो तो वो कमाल उन्होंने दिखाया है और इस लिहाज से आज काफी अहम होगा, उनके प्रदर्शन पर नजर रहेगी। वहीं मणिपुर के रिक्षांत सिंह और उत्तराखंड के अमन कुमार इस स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। इस पहली हीट में याद रखिए इस हीट को जो लीड करेगा वो सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, जबकि जो बाकी 2 प्रतियोगी रहेंगे उनके पास रेपेचेज के जरिए फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। तो ग्रुप ए से हीट नंबर 1 का आगाज होता हुआ, जहां पर इस समय ये रहे आपके स्क्रीन पर अर्जुन लाल, जिनके पास वो अनुभव और वो ख्याति है, इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं और इस समय यहां पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 के अंदर अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंचे हैं और अपनी प्रतिभा के मुताबिक देखिए कितने आराम से ऐसा लग रहा है इस हीट को लीड कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। Neck-to-neck battle between these two. You can see all 4 of them, of course, leading as expected. Delhi's Arjun Lal Jat. Men's singles scull there. One of the important aspects when you are in a heat is to also manage your energy. You of course know that you need to peak for the finals. And Arjun knows very well that when it comes to comparing himself against the other players, he knows very well that he's head and shoulders above them. So once you make a lead, and you are in a commanding position, you want to be comfortable, cruising his way towards the finish line as he approaches the end markers. We will of course wait for the official confirmation, but looks like Arjun is making it past the finish line. But let's not jump to any conclusions when it comes to the double scull. There are a lot of disqualifications that happen for various reasons, especially if you see that some of the athletes make it out of their lane. And so we always wait for the official confirmation. This race, of course, had Jammu and Kashmir, the host side. We had Uttarakhand, we had Manipur, and of course, Delhi. But a good beginning here at the Khelo India Water Sports Festival 2025. The first 2 races we started off earlier today with the lightweight women's double scull, where Manipur took the victory, qualifying into the finals. This one having
like Vikas was mentioning, the Olympian Arjun Lal Jatt. So, a clear favorite. Beautiful, majestic, sensational Kashmir in its full splendor. And I want to tell you, I know you're mesmerized by these pictures sitting at home, but it's 10 times more beautiful when you actually are here watching it with your own eyes. What you see on your screen doesn't quite justify the beauty of this landscape. So there you can see the setup. It's the men's double scull coming up. And we'll have Telangana, Manipur, Maharashtra and Jammu and Kashmir in contention, just waiting for the green light to come up for them to race out. So I'm corrected there. Now that we can see the boats, we can figure out that it's the coxless pair. Just waiting for the go-ahead to put in their all as they look to qualify for the final. So this is heat number 1 for the men's coxless pair. Beautiful, sensational pictures here from the Dal Lake in Srinagar. The weather's reasonably nice in the sense we are still in the earlier part of the mornings. The temperature does pick up. The temperature does pick up towards 12. And we see temperatures around 29, 30 by the time we reach mid-noon. And with that, we have the flag off. This is the men's coxless pair heat number 1. For your eyes, we have in lane number 1, that's Telangana. Lane number 2 is going to be Manipur. In the 3rd position, you can see Maharashtra and Jammu and Kashmir in the 4th lane. Telangana on your left, represented by Navdeep, Hardeep, that combination. Hardeep, of course, in the stern side. Then for Manipur, you have Harsh Pratap Singh, then Devraj Singh. Maharashtra has Vipul and Jasmail Singh. Jammu and Kashmir has Itiraza Ali and Muntazar Ali Mattu. Neck-to-neck battle, especially we don't have the perfect angle for us to figure out who's running in front, but based on the pictures we have, it looks like that it's a close contest here for the 2nd position. The 1st position seems quite clear. Late charge there being made by Navdeep and Hardeep. Approaching the finish line. This is going to be a close game, close matter. Rowing away. Clear standout top 3 here.
I think the first two have definitely separated themselves from the others. You have lane 2 and lane 3 action, Manipur and Maharashtra. Who's going to be Manipur or Maharashtra? The crowd beginning to get into the mix as well, cheering their team along. It's a close finish. It's going to be a very, very close finish. Who is this going to go to? It's too close to call for us here. We'll have to depend on the race officials to answer and tell us who are the winners of this heat number 1 in the cockless pair. मेंस सिंगल्स का आपकी जगह हीट नंबर 1 मेंस कॉक्सलेस पेयर इस समय समाप्त हुई है ग्रुप ए से, और अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला इवेंट जो आपकी तरफ आ रहा है विमेंस 4 का, जहां पर इस समय 4 टीमें 4 लेन में नजर आएंगी आपको। तमिलनाडु, केरल, पंजाब और हरियाणा। तमिलनाडु को रिप्रेजेंट जहां कर रही हैं तमिल सेल्वी, रोज और रोशनी प्रिया के अलावा भाग्यवती, तो वहीं केरल की तरफ से मरिया रजू, विस्मया बिपिन, तृष्णा अनिल कुमार और मीनाक्षी वीएस। वहीं पंजाब की नवनीत कौर, मनवीत कौर और प्रभजोत कौर के अलावा मनदीप कौर। वहीं हरियाणा की तरफ से तमन्ना, नैना, संगीता और रिया इस समय इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, और इसका आगाज बस होने जा रहा है। हीट नंबर 1 है विमेंस 4 के अंदर, और इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि ये ग्रुप ए का हीट नंबर 1 है विमेंस कॉक्सलेस 4, और यहाँ पर ये 4 टीमें हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, इन पर नजर बना के रखिए। हीट से जो लीड करेगा सीधे फाइनल्स में जाएगा, और वहीं बाकी 3 जो टीमें हैं उनको मौका मिलेगा उस रैपिड राउंड के जरिए फाइनल में पहुंचने का। तो एक आकर्षक रेस आने वाली है। अब तक कॉक्सलेस 4 के अंदर ये पहला इवेंट, पहला मुकाबला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। श्रीनगर के डल लेक से हम लाइव हैं, और अब तक जो हमने 3 हीट्स देखी हैं उसमें बहुत नज़दीकी मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अब जब विमेंस 4 की बारी आ रही है तो वहां पे वो तालमेल बहुत अहम हो जाता है। वैसे तो ये पूरा खेल अगर तालमेल का है, किस तरीके से अपने पतवार ओवर जिसको बोलते हैं हम उसको सही इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने रिदम को मैच करते हैं, अपने तालमेल को बनाए रखते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। तो ये 4 टीमें इस समय अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं विमेंस कॉक्सलेस 4 के अंदर। ग्रुप ए का हीट नंबर 1 आपकी तरफ आ रहा है, और स्टार्ट बहुत सबसे वाइड आपको तमिलनाडु, बीच में आपको केरल, और उसके साथ लगा हुआ आपको पंजाब, जबकि हरियाणा भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो इस समय कॉक्सलेस पेयर 4 के अंदर, और चलिए अब आगाज होता हुआ। स्टार्ट सही तरीके से करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आपने अगर वो फ्लैग
फ्लैग ऑफ से पहले अगर आपने स्टार्ट लिया तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल एक अच्छी शुरुआत ऐसा लग रहा है देखने को मिल रही है। और इस समय जो हमारे आपकी स्क्रीन पर दो वाइड लेन्स हैं, वो एक नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेन नंबर 1 केरला ऐसा लग रहा है लीड कर रही है इस समय। लेन नंबर 4, वैसे तो आपकी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स आ रहा है उसके हिसाब से मत जाइए, लेकिन इस समय केरला की जो पोजीशनिंग है वो आपके दाहिने तरफ से दूसरी जो लेन है वो इस समय वो लीड कर रही है केरला की टीम, और वो आपकी स्क्रीन पर अब आपको नजर आ रहा होगा। सीधा क्वालिफिकेशन नजर में होगी, और अब देखिए लेफ्ट वाइड लेन से भी अच्छी चुनौती मिल रही है। पंजाब की टीम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पंजाब की तरफ से नवनीत, मनदीप, प्रभजोत और मनदीप इस समय दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं केरला की तरफ से भी एक मजबूत चुनौती पेश की जा रही है इस हीट नंबर 1 में। सीधा क्वालिफिकेशन, सीधा वो फाइनल की राह बनाने की कोशिश, और इस समय देखिए अपनी ताकत का जोर आजमाइश करते हुए इस रोइंग के इवेंट के अंदर, एक ओलंपिक इवेंट जहां पर हाल के वर्षों में भारत ने कम से कम एशियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया था। हांगझो एशियन गेम्स हुए थे, वहां पे भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था और सिल्वर मेडल जीता था, जहां पर अर्जुन अल जट ने वो पेयर में भारत को एक पदक दिलाया था। और इस समय अब देखिए आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कॉक्सलेक्स 4, यानी 4, एक टीम में 4 रोअर्स, और वहीं इस समय कोशिश, तालमेल काफी अहम हो जाता है। स्कल्स में 2 पतवार आपको मिलती है, जबकि आपको अगर सीधे कॉक्सलेक्स में जाना है तो फिर आपको एक पतवार का सिर्फ इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो ऑड इवन की दिशा में होती हैं। अगर एक दाएं है तो दूसरे खिलाड़ी का उसके सामने बैठा हुआ बाएं होगा, और कुछ वैसे ही तालमेल बैठा के देखिए वही करने की कोशिश। सबसे पीछे जो इसमें रोवर होता है वो सबसे काबिल और सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है इस टीम स्पर्धा के अंदर, और वही कोशिश इस समय की जा रही है। It's a nice build up towards the finish, and true to pedigree, Vikas, Kerala with a very strong performance. Angel, Maria Raju, there's Vismaya, Bipin, Trishna, Anil Kumar, Minakshi. That combination, there is a strong fight being put up there in lane number 1. It's a close finish. It's a close finish. Eventually, Tamil Nadu and Kerala, and that close contest there. See, finishing second is also really important because you have the rapid charge opportunity that will be given to you later. We will, of course, wait for the official confirmation, but to the naked eye, it looks like Kerala pulled off a win in that particular heat. It's the women's first heat in the Coxless 4. Lovely pictures, beautiful scenes, almost the perfect temperature for rowing in India. Dal Lake, of course, developing as a center which will be the homing ground for rowing talent in the country as we prepare the lineup for the next event that comes up. And this one is going to be heat number 2 for the lightweight double scull.
This is a women's heat number 2. We've already seen the first heat, which Manipur had won. We started off the day with that particular heat. This heat is going to be amongst the 4 as they get into their positions. We have a vacant lane number 3. And right now, let me quickly take you through what this lineup is going to look like. It's going to be Maharashtra in lane 1 on your right, Haryana next to them in lane 2, Punjab in lane 3, and in the 4th lane is going to be it's going to be Kerala. Great. So you have the lineup in front of you as well. You have the names of the rowers. Hima T and Haripriya Vinesh will be favorites. But don't underestimate Team Haryana. Savita and Palak might have an outside chance there. A lot of volunteers in the mix as part of this wonderful initiative that we are been cherishing over this year, the Khelo India initiative. It started all the way back in January when we all went for the Winter Games, the Khelo India Winter Games, to Ladakh, Leh Ladakh. आपने K1 और C1 की हीट्स का प्रदर्शन देखा। बहुत ही सुंदर दृश्य, डल लेक श्रीनगर का। सारे खिलाड़ियों को बहुत ही अनुकूल वातावरण मिला है और बहुत ही उत्साह से भरे हुए खिलाड़ी। अगला इवेंट जो आपके सामने शुरू होने जा रहा है वो K1 1000 मीटर फाइनल है, जो कि बहुत ही रोमांचक होगा। आपकी स्क्रीन में K1 के खिलाड़ी लाइनअप होते हुए K1 1000 मीटर फाइनल्स में लेन नंबर 1 में योगेश सिंह है पंजाब के, लेन नंबर 2 में हर्षवर्धन सिंह है उत्तराखंड के, लेन नंबर 3 में मोहसिन अली हैं जो कि JNK के हैं, लेन नंबर 4 में सौरभ साहू हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, लेन नंबर 5 में बाला मुरली जो केरला को रिप्रेजेंट करते हैं, और लेन नंबर 6 में मैंग मध्य प्रदेश। बहुत ही शानदार रेस का प्रदर्शन आपके सामने अभी शुरू होगा। सारे खिलाड़ी अपनी अपनी लेन में तैयार, स्टार्ट अंपायर के इशारे का इंतजार करते हुए, जो कि फाइनल है। ये आज खेलो इंडिया का पहला दिन कैनो कायाकिंग स्पर्धाओं का, और जिसमें कि ये पहली रेस है जो कि मेडल के लिए होने जा रही है। लेन नंबर 1 में है पंजाब जो योगेश सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेन 2 में हर्षवर्धन सिंह है जो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेन नंबर 3 में मोहसिन अली हैं जो JNK जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेन नंबर 4 में सौरभ साहू हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, लेन नंबर 5 में बाला मुरली हैं जो कि केरला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेन नंबर 6 में मध्य प्रदेश के मैंग हैं। सारे खिलाड़ी तैयार हैं स्टार्ट अंपायर के इशारे का। पहला फाइनल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज पहला दिन, और ये आज का पहला फाइनल K1 1000 मीटर मेंस। देखना होगा कि इन खेलों का पहला पदक किस राज्य के खाते में जाता है। मैं आपको बता दूं, खेलो इंडिया का आज पहला दिन, जिसमें कि नौकायन कैनोइंग कायाकिंग की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इस समय आपके सामने K1 1000 मीटर फाइनल्स के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि लेन नंबर 1 में पंजाब के योगेश सिंह है, लेन नंबर 2 में उत्तराखंड के हर्षवर्धन, लेन नंबर 3 में जम्मू एंड कश्मीर के मोहसिन अली, लेन नंबर 4 में छत्तीसगढ़ के सौरभ साहू, और लेन नंबर 5 में है केरला के बाला मुरली, लेन नंबर 6 में मैंग है जो कि
उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे खिलाड़ी तैयार, फाइनल्स है, देखना होगा। बहुत ही बढ़िया रेस होने जा रही है। क्या बोलेंगे रोशन जी? देखना है कि गोल्ड मेडल कौन हासिल करता है, सिल्वर मेडल किसके हिस्से में आता है और ब्रॉन्ज मेडल किसकी झोली में गिरता है। लेकिन ये मेडल हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना होगी खिलाड़ियों को, बहुत कोशिश करनी होगी और अपनी परफॉर्मेंस को पीक पर पहुंचाना होगा। हिम्मत मेहनत से काम करना होगा और अपनी स्किल को यूज करते हुए कोशिश करना होगी कि टच लाइन को क्रॉस करें, और जितना कम समय आप लेंगे टच लाइन तक पहुंचने में, उतने आपके ज्यादा चांसेस बनते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। देखिए 6 खिलाड़ियों में 3 तो मेडल जरूर जीतेंगे, लेकिन 3 को मेडल के बगैर ही घर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वो एक हौसले के साथ जाएंगे कि इस बार अगर कामयाबी नहीं मिली तो अगली बार जरूर मिलेगी। यही तो सुंदरता है इन खेलों की कि व्हेन यू लूज you are ready for the next go. Here goes the race and this is the final of K1 kayak 1 रेस। बहुत अच्छा आगाज किया है वहां पे खिलाड़ियों ने। सौरभ साहू छत्तीसगढ़ के और खास तौर पे मोहसिन अली J&K के आगे जा रहे हैं, उनके साथ है मयंक यूपी के राइट साइड में। अच्छा स्टार्ट लिया है और यहां पर देखिए फिर बाला मुरली थोड़ा पीछे रह गए हैं। सौरभ साहू जो लेन नंबर 4 में है वो थोड़ा सा पीछे है मोहसिन से। हर्षवर्धन उत्तराखंड के लेन नंबर 2 में पीछे हैं। लेन नंबर 1 में योगेश सिंह थोड़ा आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी जो पोजीशन है उसमें मयंक आगे चले गए हैं। मयंक उत्तर प्रदेश के आगे चल रहे हैं। इनके दरमियान मोहसिन अली और मयंक के दरमियान कांटे का मुकाबला है। देखना है कौन सा खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टच लाइन को क्रॉस करेगा। It's very interesting moment because this is the final. It's not heat anymore. These players have performed very well in heats, but now is the chance to win a medal, gold, silver or bronze. Let's see who is going to take bronze, who is going to take silver and who is going to be a gold medalist. Very close fight in this final K1 competition under first Khelo India Water Sports Festival being organized here in Dal Lake, Srinagar. Interesting moment. 500 meters have been crossed by these players. Let's see who is taking lead. It appears that Yogesh Singh in lane number 1 is trying hard, but still Mohsin Ali and Mayank, they are forging ahead of the rest of the lot, and let's see who is going to beat whom. At present in lane number 3, Mohsin Ali of J&K is far ahead, and then you have on the extreme right Mayank. On your screen right side, Mayank of UP is at number 2 position, but you never know till the last moment, till you touch the finish line, because once you are in leading situation, leading position, you have to maintain that lead. You have not to be complacent. Once you become complacent and complacency sinks in, then it's going to impact your performance. Beautiful race going on in Dal under the Khelo India Water Sports Competition. This is Mohsin Ali of J&K, lane number 3. On the right you will find Mayank of Uttar Pradesh, and then the 2 players are far behind. Harshvardhan of Uttarakhand is also there. Mohsin Ali, J&K, lane number 3, proceeding ahead, steering his boat in a beautiful manner, in a very confident and composed manner. Mohsin Ali of J&K is leading the pack, heading towards the finish line, being cheered by the spectators around. It's a very important win for Mohsin Ali if he touches the finish line. At present Mohsin is ahead, but he is being challenged by Yogesh Singh of Punjab and other players also. 1000 meter K1, let's see who is the winner.
बहुत ही अच्छे तरीके से खिलाड़ियों ने इस K1 फाइनल में पार्टिसिपेट किया। अभी तक भी फिनिश लाइन नहीं पहुंचे। देखना है फिनिश लाइन कौन क्रॉस करता है। काफी पीछे हैं वहां मयंक 6 नंबर लेन में, बहुत पीछे रह गए, लेकिन अभी भी लग रहा है कि मोहसिन अली J&K के आगे हैं। देखना है कि अपनी लीड बरकरार रख पाते हैं या नहीं। यहां पे फिनिश लाइन किए क्रॉस मोहसिन अली ने। कांग्रेचुलेशंस फॉर फर्स्ट गोल्ड मेडल। बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपने देखा, जबकि आखिरी में पंजाब के योगेश सिंह ने कोशिश की थी टक्कर देने की लेन नंबर 3 में मोहसिन अली को, लेकिन वो सफल नहीं हुए और 3 नंबर लेन ने फिनिश लाइन को पहले टच किया। ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन बहुत ही रोमांचक रेस आपने देखा होगा रोशन। शुरू से ही इन लोगों ने अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, जो कि इनके हीट्स और सेमीफाइनल में थी उससे अलग थी। मुझे लगता है ये अपनी पूरी एनर्जी को बचा के रखे थे। इन्होंने सोचा मैं पूरी एनर्जी को फाइनल में यूज करूंगा, और ही हैज बीन सक्सेसफुल बिकॉज यू नो इट मैटर्स व्हेन यू are fighting for the gold medal. At that particular time, your body should support you, your mind should support you, and you have to be mentally very strong. If you are mentally strong, physically strong, see the start. See how good the start was for UP's Mayank. And then Mohsin Ali was leading the pack, and his start was also wonderful, and he maintained his lead throughout the race, and he has won the final K1 gold medal. देखिए रोशन, स्टार्ट तो सबसे बढ़िया लेन नंबर 6 में जो मयंक थे उन्होंने दिया था। लग रहा था शुरू में वो उस लीड को मेंटेन करेंगे, लेकिन 200 मीटर आते आते वो पीछे होने लगे। और उसके बाद लेन नंबर 3 में मोहसिन अली, उसका पंजाब के योगेश सिंह ने अच्छा फाइट किया। पंजाब के योगेश सिंह का अच्छा प्रदर्शन रहा है सेमीफाइनल और हिट्स में भी। उम्मीद थी उनसे कि अच्छा टक्कर देंगे, लेकिन मोहसिन अली ने उनको पास नहीं फटकने दिया और इस तरह पहले फिनिश लाइन को टच किया। फिर भी एक बार ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार है। देखिए फाइनल का जो मजा होता है वो अलग ही होता है। इससे आपके मुंह में मिठास आ जाती है। अभी तक आपने वेट किया कि कौन से खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेंगे, फिर आपने देखा कि पंजाब, उत्तराखंड, J&K, छत्तीसगढ़ और केरला और साथ में यूपी के ये 6 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। बहुत मेहनत करके हीट्स में इन्होंने पसीना बहाया और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और जब फाइनल आया तो उसके बाद मोहसिन, ये अगली जो रेस है कैनोइंग मैन फाइनल स्प्रिंट C1 1000 मीटर्स, इसमें जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेन 1 में J&K के मोहम्मद हुसैन, लेन 2 में विशाल कुमार, लेन 3 में तरुण हैं दिल्ली के, विशाल कुमार यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के कृष्णा जाट वो लेन 4 में हैं, पंजाब के करण कंबोज लेन 5 में और उत्तराखंड के रविकांत कपिल लेन 6 में। यह मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कैनोइंग मैन फाइनल स्प्रिंट C 1000 मीटर्स। रेस शुरू होने वाली है। देखना है कि इस रेस में, जो कि कैनोइंग की रेस है, क्या पोजीशन बनती है। अगला इवेंट आपके सामने खेलो इंडिया में कैनोइंग का मेंस सिंगल फाइनल होगा 1000 मीटर्स, C 1000 मीटर मेंस कैनो फाइनल्स। अभी आपके सामने इससे जो पहले रेस हुई थी, जो कि कैक 1 की थी, K1 की 1000 मीटर मेंस की, बहुत ही बढ़िया रेस का मुजाहिरा किया यहाँ के खिलाड़ियों ने। और उसी तरह C1 का फाइनल जो शुरू होने वाला है, कैनो मेंस स्प्रिंट C 1000 मीटर्स। 6 खिलाड़ी होंगे जो कि स्वर्ण, रजत और कांस्य के लिए फाइट करेंगे। आज पहला दिन था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का, जो कि डल लेक श्रीनगर में चल रही है इस समय। मैं बता दूं आज ये पहला दिन था जिसमें कि नौकायन, कैनोइंग, कैकिंग की स्पर्धाएं चल रही हैं, जो कि मेडल इवेंट्स हैं। इसके अलावा डेमो इवेंट्स भी हैं जिनमें कि
वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट एंड शिकारा रेस भी है। मेडल इवेंट्स में आज पहला इवेंट मेडल का गोल्ड के लिए ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार है, जो कि फाइनल्स हुए थे K1 1000 मीटर्स का। अगला इवेंट कैनोइंग मेंस स्प्रिंट C1000 मीटर शुरू होने वाला है। खिलाड़ी अपनी अपनी लेन में जाते हुए स्टार्ट लाइन में। देखना होगा इसमें किसकी झोली में स्वर्ण और किसकी झोली में रजत और पदक जाएंगे। बहुत ही शानदार रेस थी ये कयाकिंग की, K1000 मीटर्स की। बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया खिलाड़ियों ने। फाइनल्स था, सबने अच्छी जान लगाई, लेकिन 500 मीटर के बाद स्थिति कुछ क्लियर होने लगी कि कौन सा खिलाड़ी लीड लेके स्वर्ण जीतेगा। आपकी स्क्रीन में कैनो C1 के खिलाड़ी लाइन अप करते हुए सीधे फाइनल्स है, सीधे फाइनल्स है ये C1000 मीटर मेंस का। सारे खिलाड़ी हीट्स और सेमीफाइनल लड़के इस फाइनल की स्टेज में पहुंचे। 6 खिलाड़ी हैं, 3 पदक दांव पे लगे। स्टार्ट लाइन पे सारे खिलाड़ी तैयार होते हुए। इस समय लेन 1 में जम्मू एंड कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, लेन नंबर 2 में उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार, लेन नंबर 3 में दिल्ली के तरुण, लेन नंबर 4 में मध्य प्रदेश के कृष्णा जाट, लेन नंबर 5 में पंजाब के करण कंबोज, लेन नंबर 6 में उत्तराखंड के रविकांत कपिल है। नजर रहेगी लेन नंबर 3 दिल्ली में दिल्ली के तरुण पर। बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने हीट्स और सेमीफाइनल में किया था। स्टार्टर्स तैयार है C1000 मीटर मेंस को शुरू करने के लिए। बोर्ड बॉयज ने सारी नाव को पकड़ ली है, अलाइनमेंट चल रहा है। सारे खिलाड़ी तैयार। आपकी स्क्रीन में दिल्ली के तरुण जिन पर नजर रहेगी। 6 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें कि 3 पदक दांव पे लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के कृष्णा जाट आपकी स्क्रीन पे। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आज पहला दिन। एक फाइनल हो चुका है, ये दूसरा फाइनल है, जो कि C1000 मीटर करण कंबोज पंजाब के लेन नंबर 5 में। ये दूसरा फाइनल है आज के दिन का। रविकांत कपिल जो कि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेस के लिए तैयार। स्टार्टर तैयार। लेन नंबर 1 में मोहम्मद हुसैन जो कि JNK के हैं। लेन नंबर 2 में विशाल कुमार जो कि उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेन नंबर 3 में तरुण दिल्ली के। लेन नंबर 4 में कृष्णा जाट मध्य प्रदेश के। लेन नंबर 5 में करण कंबोज पंजाब के। लेन नंबर 6 में रविकांत कपिल हैं जो कि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तैयार। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए दावेदारी। शांत वातावरण, हवा, पानी की लहरें सब इस तरह शुरू हो चुकी है। ये C1000 मीटर मेंस की फाइनल रेस। देखना होगा किसके हाथ में स्वर्ण आता है। इस समय कांटे की टक्कर सभी खिलाड़ियों के बीच में। फाइनल है तो ये तो देखने को मिलेगा ही। इस समय लेन 1 में के खिलाड़ी ने थोड़ी बढ़त। लेन नंबर 1, लेन नंबर 2 काफी बराबर चलते हुए, बराबर की टक्कर देते हुए। लेन नंबर 1 में जम्मू कश्मीर के मोहम्मद हुसैन,
लेन नंबर 2 में विशाल कुमार यूपी के, जिन्होंने थोड़ी लीड ले ली है, लेकिन देखना होगा कि आगे चल के ये इस लीड को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद दिल्ली के तरुण, जिस पे मैंने कहा था नजर रहेगी, देखना होगा 500 मीटर के बाद क्या स्थिति रहती है। इस समय 1 2 3 लेन में मोहम्मद हुसैन जम्मू एंड कश्मीर के, विशाल कुमार उत्तर प्रदेश के, लेन नंबर 3 में तरुण दिल्ली के, कांटे की टक्कर चलती हुई। लेन नंबर 4 में मध्य प्रदेश के कृष्णा संघर्ष करते हुए, लेन नंबर 5 में करण कंबोज जो कि पंजाब के हैं, लेन नंबर 6 में रविकांत कपिल जो कि उत्तराखंड के हैं, जो इस समय सबसे पीछे चल रहे हैं। लेन नंबर 2 के विशाल कुमार ने 1 बोट लेंथ की लीड ले ली है। लेन नंबर 3 में जो तरुण के दिल्ली है वो थोड़ा कम बैक कर रहे हैं। लेन नंबर 1 में देखना पड़ेगा मोहम्मद हुसैन जो एनके के क्या करते हैं 500 मीटर क्रॉस करने के बाद। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है C1 फाइनल में तमाम खिलाड़ियों को, और ये खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल जीतें, जो नहीं जीत पाया कम से कम सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल हासिल करे। अभी तक जो लीड ले रहे हैं वो तरुण हैं दिल्ली के, लेन नंबर 3 में। लेन नंबर 2 में है विशाल कुमार, और लेन नंबर 1 में है मोहम्मद हुसैन J&K के। विशाल कुमार भी कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि वो आगे बढ़ें और ये फाइनल जीतें, क्योंकि गोल्ड मेडल हासिल करने का बहुत अच्छा मौका है। ये हैं विशाल कुमार लेन नंबर 2 के, बहुत अच्छे तरीके से पैडलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे आगे चल रहे हैं इस वक्त दिल्ली के तरुण, और उनके साथ साथ चल रहे हैं मध्य प्रदेश के कृष्णा जाट, और पीछे हैं विशाल कुमार उत्तर प्रदेश के। इन्हीं तीनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला है। मोहम्मद हुसैन जो लेन नंबर 1 में है काफी पीछे हैं, और करण कंबोज और उनके साथ कपिल, रविकांत कपिल काफी पीछे रह गए हैं। लेन 1, 5 और 6 वाले, लेन 2, 3 और 4 के दरमियान मुकाबला है। इन्हीं में से लगता है कि कोई जीतेगा, क्योंकि काफी लीड ले चुके हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो गोल्ड मेडल जीतेगा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी मुकाबला हो रहा है। अभी भी दिल्ली के तरुण ने अपनी लीड बरकरार रखी है। ही इज रियली मूविंग हिज, स्टीयरिंग हिज बोट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। ही हैज गॉट ऑल द कॉन्फिडेंस एंड ही इज क्रॉसिंग 200 meters. They have to go to 1000 meters. Long way to go still. Now the fight is neck to neck between Kapil Kumar of UP, lane number 2, then Tarun of Delhi, lane number 3, and on his left Krishna Jat from Madhya Pradesh. These three players are quite ahead of rest of the three players. So let us see who is going to win this gold medal. जहां तक कैनोइंग का ताल्लुक है, कैनोइंग बहुत ही अच्छी गेम है। अब देखना है, देखिए टच एंड गो का मामला है। लेन नंबर 2 विशाल कुमार लगता है आगे हैं, साथ में तरुण दिल्ली के हैं, और इनके साथ मध्य प्रदेश के कृष्णा जाट भी ज्यादा पीछे नहीं है। कृष्णा जाट बल्कि आगे चले गए हैं। देखिए जो बीच बीच में स्थितियां बदल रही हैं, बीच में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के तरुण आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी विशाल कुमार जो यूपी के, उन्होंने थोड़ी सी बढ़त ले ली है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब तक फिनिश लाइन ना, फाइनल्स है ये, तो ये सब तो देखने को मिलेगा। हो सकता है फोटो फिनिश भी देखने को मिले, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो मोहम्मद हुसैन थे, उन्होंने बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेन नंबर 4 में कृष्णा जाट मध्य प्रदेश के बहुत अच्छी कोशिश करते हुए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है इस समय। मुझे तो दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के मोहम्मद हुसैन भी कम बैक कर रहे हैं, उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, लेकिन देखना पड़ेगा। विशाल कुमार तो अच्छे जा रहे हैं, साथ में 4 नंबर में कृष्णा मध्य प्रदेश के, इन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया है। उन्होंने 3 नंबर के तरुण दिल्ली को पीछे करते हुए 1 बोट लेंथ की लीड ले ली है, और मुझे लग रहा है उनकी जिस तरह से स्पीड, देखना होगा कि क्या फिनिश होता है। और इस तरह मुझे दिखता है फिनिश लाइन 2 नंबर के यूपी के विशाल कुमार। फाइनल ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार। देखिए एक बोट कैप्साइज कर गई है। जैसे मैंने कहा कि कुछ नहीं कहा जा सकता, कैनो को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना पड़ता है। एक खिलाड़ी कैप्साइज हो चुकी है, देखना पड़ेगा वो किसकी बोट कैप्साइज की है। ये था आपके सामने मैं कैनो मेंस स्प्रिंट C1000 मीटर्स का फाइनल्स, जिसमें कि 4 नंबर के कृष्णा MP ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और ये दूसरी बोर्ड भी कैप्साइज हो गई है। ये थकने के बाद होता है खिलाड़ियों को, बहुत ही स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, बहुत स्टेमिना की जरूरत होती है, मसल्स क्रैम्प कर जाती है लास्ट फिनिश लाइन तक टच पहुंचते पहुंचते। और इस समय 2 बोर्ड्स कैप्साइज कर चुकी हैं,
मुझे लगता है रेस्क्यू बोट्स पहुंच रही हैं उनके पास उनकी मदद के लिए, और बहुत शानदार रेस देखने को मिली। ये फाइनल था आपकी स्क्रीन में समय लेन नंबर 4 के कृष्णा जाट, जो कि मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, बहुत ही रोमांचक रेस रही। स्थितियां बीच बीच में बदलती रही। 200 मीटर में कोई और स्थिति थी, 500 मीटर में स्थिति कुछ और हुई, और 1000 मीटर आते आते स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल बदल गई। SKICC जहां पर बैक लॉन्स के पास डल में ये मुकाबले हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होने वाले हैं और बाकी डेमोन्स्ट्रेटिव गेम्स भी यहाँ पे मुनाकिद की जाएंगे। और राइट साइड में आप देख रहे हैं हमारा जो सेंटर है, कंट्रोल रूम, वो अपने आबोताब के साथ काम कर रहा है। और बीच में देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ये एरिया, और यहाँ पर ये खिलाड़ी हैं करण पंजाब के, और ये हैं मध्य प्रदेश के कृष्णा जाट। ये स्टार्ट देखिए, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था क्योंकि फाइनल के लिए रेस हो रही थी। तो स्टार्ट में विशाल कुमार, तरुण और कृष्णा ने अच्छा स्टार्ट लिया था, और साथ में मोहम्मद हुसैन ने भी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन फिर उसके बाद मोहम्मद हुसैन थोड़ा पीछे रह गए, और जो लीड कंसीड की थी मोहम्मद हुसैन ने लेन नंबर 1 में, वो लीड कवर अप नहीं कर पाए क्योंकि विशाल कुमार उत्तर प्रदेश के लेन नंबर 2 वाले, और तरुण दिल्ली के लेन नंबर 3 में, और कृष्णा जाट मध्य प्रदेश के लेन नंबर 4 में उनसे काफ़ी आगे चले गए। पीछे रह गए थे मोहम्मद हुसैन के साथ पंजाब के तरुण गंबोज और रविकांत कपिल जो लेन नंबर 6 में थे। बहुत अच्छा मुकाबला। यहाँ पर लेन 2, 3 और 4 के खिलाड़ी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए। इन्होंने जो कैनोइंग का एग्जीबिशन किया है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जो हार्डवर्क किया है, जो लास्ट मोमेंट पे डैश किया है, वो देखने से बनता है। आप देख सकते हैं हाइलाइट्स में कि कैसे लास्ट मोमेंट पे इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, और जितनी ताकत इनके पास थी, जितना स्किल इनके पास था, उसको इस्तेमाल करते हुए फिनिश लाइन को टच किया। बहुत अच्छी रेस, बहुत शानदार कारकर्दगी इन खिलाड़ियों की। वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय ऑल दीज प्लेयर्स, स्पेशली लेन नंबर 2, 3 and 4 विशाल कुमार ऑफ यूपी, Tarun और Delhi and Krishna Jat of Madhya Pradesh, they performed excellently well. आप देख रहे हैं शंकराचार्य पीछे हिल है, वहां पे शंकराचार्य मंदिर भी है और टावर भी है दूरदर्शन का। और अगली रेस जो है कयाकिंग एंड कैनोइंग स्प्रिंट विमेन, इसमें लेन नंबर 1 में 2 बजे आप देखेंगे कैनोइंग विमेन, 2:15 बजे कैनोइंग विमेन हीट 2, 2:30 बजे आप देखेंगे कैनोइंग विमेन हीट 3, 3 बजे कैनोइंग विमेन सेमीफाइनल होगा, और आज 3:45 बजे कैनोइंग विमेन फाइनल होगा C1 200 मीटर्स का डल लेक में। और रोमांच का अनूठा संगम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, जिसका आयोजन हो रहा है श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर। मैं हूं अमित अरोरा, और वाटर स्पोर्ट्स पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में है वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज सुबह हमने देखा कि पहले तो हीट्स हुए मेंस कायाकिंग 1000 मीटर्स में, और फिर मेंस हीट आपने देखे 1000 मीटर्स कैनोइंग में, और दोनों का ही सेमीफाइनल और अब फाइनल मुकाबला हो गया है। तो सबसे पहले जो पहला गोल्ड मेडल आज गया है वो जम्मू कश्मीर के मोहसिन अली को गया मेंस 1000 मीटर कायाकिंग में। उनको बहुत बहुत बधाई। कैसे देखते हैं गोल्ड मेडल मुकाबला? ग्रेट एफर्ट। काफ़ी साल से नाम सुनते आए हैं, कई इनके पास मेडल है राष्ट्रीय स्तर पर। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।